ابتدائی حوالہ تلاوت کیا جائے گا متی کی انجیل اس کا 9واں باب. نئے عہد نامہ میں سے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 17ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. تشریف رکھیے. میرے عزیزو، جیسا کہ ہم چند ہفتوں سے روح القدس کی علامات پر، روح القدس کے نشانات پر غور کر رہے ہیں اور اس سے ہم برکت پا رہے ہیں، آج ہم ایک اور علامت میں آب انگور یا شراب، یہ بھی روح القدس کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. آج ہم اس علامت پر غور کریں گے. علامت یا مثال یا تمثیل کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم در حقیقت روح القدس کی الہی فطرت پر، روح القدس کی مافوق الفطرت قدرت پر اور روح القدس کی بے لوث خدمت کے بارے میں جانتے اور سیکھتے ہیں. اور یہ علامات جو ہے یہ نہ صرف ہم روح القدس کے بارے میں سیکھتے ہیں، بلکہ روح سے معمور کلیسیا، روح سے معمور منسٹری، روح سے معمور شخص وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ اس کی زندگی کو بھی جاننے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا موقع ہمیں فراہم کرتا ہے. تو روح القدس کی علامات کو جاننا، روح القدس کی شخصیت کو جاننا، اس کی فطرت کو جاننا ہے، اور پھر اس جس میں روح القدس سرایت کرتا ہے، بستا ہے، معمور کرتا ہے، اس شخص کی زندگی کا جائزہ لینے میں بھی ہماری مددگار ہے. اس لیے یہ علامات سیکھنا اور ان کو جاننا یہ بے انتہا ضروری ہے. میں جو ہے یہ بائبلی دور کے اندر ایک ڈیلی روٹین کا ایک عام مشروب تھا. اس وقت کوکا کولا، پیپسی یا اور کوئی اس طرح کے مشروبات نہیں ہوتے تھے. ملک فلسطین کے اندر انگور کثرت کے ساتھ پایا جاتا تھا، اور انگور کے رس کو نچوڑ کر جو ہے وہ انگور کو نچوڑ کر رس جو اس کا نکلتا ہے اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، اور وہ ڈیلی روٹین کے اندر مہمان نوازی کے لیے اور عام کھانے پینے کے معمولات کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. جب اس کو فرمنٹیشن کی جاتی تھی، اس کی ایک پروسیس کے ذریعے اس میں خمیر اٹھایا جاتا تھا، تو یہ نشہ آور مشروب بن جاتا تھا جسے شراب کہتے ہیں. اور یہ جو شراب ہے یہ کہنوں کو، یہ بادشاہوں کو اور نذیروں کو اس کو پینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور عبادت کے لیے بھی یہ پی کر آنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. اتنا معیوب تھا کہ ایلی کاہن نے جب حنا کو دعا کرتے دیکھا جس کے فقط ہونٹ ہلتے تھے، آواز نہیں آتی تھی، تو اس نے حنا سے کہا کہ جا کر اپنا نشہ اتار. حنا کے ہلتے ہوئے ہونٹوں پر ایلی کاہن کو تبصرہ یاد آ گیا، لیکن اپنے بچوں کی بدمستیاں اور خرمستیاں جو ہیکل کے اندر رہ کر وہ کرتے تھے وہ اس کو نظر نہ آئے. تو خمیر جو ہے یہ بیسیکلی اس شیرے کو خراب کرتا ہے، اس کے اندر ایک تاثیر پیدا کرتا ہے جس سے یہ شیرہ جو ہے یہ نشہ آور مشروب بن جاتا تھا. اور یہ تمام تر تقریبات کے اندر، ایون عیدوں کے اندر، تہواروں کے اندر اور ہر خوشی بیاہ کے موقع پر بھی عام طور پر مہمان نوازی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. خداوند یسوع المسیح نے جو اپنا پہلا معجزہ دکھایا وہ کانا گلیل کی شادی کا معجزہ تھا جس میں ان کی مے ختم ہو چکی تھی.
تو میں جو ہے یہ اس وقت کی ایک عام جو ہے ایک سافٹ ڈرنک کے طور پر بھی استعمال ہونے والی چیز تھی، ایک بڑا خاص آئٹم تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے بغیر ہر خوشی ادھوری خوشی شمار کی جاتی تھی۔ پھر نہ صرف یہ کہ ڈیلی روٹین کے اندر اور ایک عام معمولات کے طور پر ہم میں کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں جو ہے یہ بطور ہدیہ، بطور نذرانہ، بطور آفرنگ ہیکل کے اندر قربانیوں کے ساتھ پیش کی جاتی تھی۔ میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب، اس کا 29واں باب، خروج 29واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ ایک غلام کے ساتھ کے دستے حصے کے برابر دینا جس میں 3 کے چوتھے حصے کی مقدار میں کوٹ ٹوٹ کر نکلا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور 3 کے چوتھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ یہ ڈیلی کا نذرانہ جہاں پر خداوند اپنے بندہ موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ ڈیلی تو نے کیا چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ہین کے چوتھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ تو میں جو ہے یہ ڈیلی جو آفرنگ تھی اس کے اندر پیش کی جاتی تھی۔ یہ دے یکیوں اور پہلے پھلوں کی جو آمدن تھی اس کے اندر بھی پیش کی جاتی تھی۔ استثناء 12واں باب میرے ساتھ دیکھیے، اس کی 17ویں آیت، جی مائک میں تلاوت کیجئے تاکہ یہ سب تک آواز جائے۔ استثناء 12واں باب 17ویں آیت۔ آپ کو اپنے کھاٹوں کے اندر اپنے گلا اور میں اور پیٹ کی دے یکیاں، ہاں جی، اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پہلوں کے، اور اپنی منت مانی ہوئی چیزیں اور رضا کی قربانیاں اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی قربانیاں کبھی نہ کھانا، یعنی کہ دے یکیاں اس کی جو ہے یہ دے یکی کے طور پر بھی پیش کی جاتی تھی۔ 14ویں باب کی 23ویں آیت کے اندر بھی استثناء کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ عبادت کے لیے بطور ہدیہ میں جو ہے وہ قربانی کے ساتھ گزرانی جاتی تھی۔ نئے عہد نامے میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے کہ نئے عہد نامے میں ہم اناج تو نہیں خداوند کو پیش کرتے، ہم قربانیاں تو نہیں خداوند کو پیش کرتے، ہم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرتے ہیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی ہماری معقول عبادت ہے، اور یہ معقول عبادت کب ہوگی؟ جب یہ روح سے معمور ہو کر خداوند کے حضور میں کی جائے گی، جب ہم روح میں دعا کریں گے، جب ہم روح سے گائیں گے، جب ہم روح میں ناچیں گے، جب ہم روح سے مداح سرائی کریں گے، روح اور سچائی سے پرستش کریں گے، تو یہ ہم وہ نذرانہ ہے، وہ ڈیلی آفرنگ ہے جو خداوند کے حضور میں پیش کی جائے گی، اور یہ مقبول قربانی کے طور پر خداوند کے ہاں پہنچ جائے گی، مقبول ٹھہرے گی۔ تو ڈیلی آفرنگ کے لیے میں جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی۔ دوسرا ایک ڈیول پرپز، دو مقاصد کے لیے بطور طب میڈیکل لائن کے اندر ہمیں یہ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ایک بہانہ جو ہم تراشتے ہیں، ہم اس پر بھی خاص طور پر غور کریں گے۔ جو لوگ میں کشی کا بہانہ تراشتے ہیں، اس آیت کے ساتھ ضرور اس حوالے کو دیکھیے، غور کیجئے۔ یہ معدے کی درستگی کے لیے، نظام انہضام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بدنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں استعمال کی جاتی تھی۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کتنی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا بہانہ لگایا جاتا ہے، جی وہ جی پولس رسول کہہ رہے ہیں اور تیموتھیوس کو کہہ رہے ہیں جو ایک چرچ کا پاسٹر ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو میں پیا کر۔ تو بائبل ہمیں میں کشی کی اجازت دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انٹینشن دیکھیے وہاں پر کیا ہے، مقدار بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کو غور سے دیکھیے، پہلا تیموتھیوس 5واں باب اس کی 23ویں آیت۔ آئندہ تو صرف پانی ہی نہ پیا کر، جی
बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से, यानी कि ये दो बीमारियों के इलाज के तौर पर, दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, मैदे की कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी। जी, जरा सी, कितनी मैं, जरा सी मैं काम में लाया कर। अब जो आपके सामने ये हवाला कभी पेश करे कि जी वो देखें जी वहां पर लिखा हुआ है और रसूल इजाजत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं को पीना चाहिए और मैं इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी शाह होती है, फलां है और ये है, फजूल किस्म की तावीलात पेश की जाती हैं। वहां पर बयान किया गया है कि जरा सी मैं काम में लाया कर, और वो भी इलाज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इलाज के लिए, खुश होने के लिए नहीं, राहत के लिए नहीं, और किसी मकसद के लिए नहीं, इलाज के लिए जरा सी मैं काम में लाया कर। एक और मैं का इस्तेमाल हम नेक सामरी की कहानी के अंदर देखते हैं। जब वो डाकू उस शख्स को अदमुआ करके, शदीद जख्मी करके उसी हालत में छोड़कर चले गए, तो नेक सामरी का गुजर वहां से हुआ। पहले काहिन का हुआ, फिर लावी का हुआ, लेकिन फिर नेक सामरी का गुजर वहां से हुआ। और यीशु मसीह ने हमें इस खूबसूरत आलमगीर तमसील के अंदर बताया कि उसने उसके साथ किया क्या। उसने उसके जख्मों पर मैं लगाई है। ये एंटी इंफेक्शन है, एंटीसेप्टिक है। जैसे आज हम डिटोल या कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं, जख्मों को साफ करने के लिए मैं इस्तेमाल की गई है। फिर उसके बाद उसने उस जख्मों के ऊपर तेल को लगाया है। हालेलुया। तेल मैंने आपको पहले बताया, यह भी रूह कुद्स के मसा और उसकी अलामत है। यानी जब हम गुनाह में अबलीस के हाथों शिकस्त खा जाते हैं, हम जख्मी हो जाते हैं, हम मरने के करीब होते हैं, तो उस सूरत में हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, हमें किसी दोस्त की जरूरत होती है, हमें किसी मददगार की जरूरत होती है जो मजीद हमारे जख्मों पर हंसे नहीं, मजीद हमारे जख्मों को कुरेदे नहीं, मजीद हमें जख्मी ना करे और मौत के और करीब ना लेकर जाए, ना ही हमें दिख करे, बल्कि हमें मोहब्बत के साथ इलाज करने वाला एक दोस्त चाहिए, एक मालिज चाहिए, एक गमखार चाहिए। और ये तमाम तर किरदार, ये तमाम तर खूबियां रूह कुद्स में नजर आती हैं। रूह कुद्स गुनहगार के पास आता है, रूह कुद्स अफसुर्दा जिंदगी के पास आता है, रूह कुद्स टूटे हुए उस जिंदगी के, उस दिल के पास आता है और उन जख्मों पर अपनी ताजा मैं को रखता है। वो उसे मजीद खराब होने से, मजीद बिगड़ने से, उन जख्मों के अंदर मजीद तड़पने से रोक देता है। और वो प्रोसेस जो उसके जख्मों को खराब कर सकता है, जिसे मजीद खराबी की तरफ लेकर जा सकता है, उसे वहीं पर स्टॉप करके दोबारा बहाली की तरफ लेकर जाता है। ये मेरे अजीजों रूह कुद्स की खिदमत है, ये रूह कुद्स की मैं का काम है। वो ना सिर्फ हमें उस हालत से निकालती है, ना सिर्फ हमें तौबा पर और यीशु की तरफ माइल करती है, बल्कि हमारे अंदर नई मैं को डालकर अपने तेल के साथ हमें बहाल भी करता है, हमें शादमान भी करता है, हमें दोबारा से यीशु मसीह की तरफ लेकर आता है। क्योंकि गुनाह के साथ खौफ आता है, गुनाह के साथ अफसुर्दगी आती है, गुनाह के साथ डिप्रेशन आता है, गुनाह के साथ मायूसी और नाउमीदी आती है। लेकिन रूह कुद्स के आते ही ये सारे का सारा मंजर बदल जाता है और रूह कुद्स के आने से खुशी आ जाती है, निजात आ जाती है, शादमानी आ जाती है, बहाली आ जाती है, जिंदगी को एक नई जहत मिलती है, नई जिंदगी मिलती है और ये जिंदगी को एक नया मकसद देकर आसमान की बादशाहत का वारिस बना देता है। ये रूह कुद्स की मैं का काम है। अगर जख्मों पर मैं ना लगाई जाए, उन्हें डिसइंफेक्ट ना किया जाए, तो वो नासूर बन जाता है।
وہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روح القدس ہے جو ہم ٹوٹے ہوئے زخمی دلوں کو بھی جوڑتا اور مسیح کی طرف دوبارہ لے کر آتا ہے۔ یہ روح القدس کی خدمت ہمیں کلام کے اندر نظر آتی ہے۔ تیسری بات اور بڑی خاص بات جو میں کے تعلق سے ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر میں جو ہے یہ برکت کی علامت سمجھی جاتی تھی، یہ فلفلمنٹ، بھرپوری، معموری۔ پیدائش کی کتاب 27واں باب اس کی 28ویں آیت، خدا کا بندہ ابراہیم اپنے بیٹے کو دعا دے رہا ہے برکت کی، پراسپیرٹی کی، بحالی کی، اور اس کے اندر اس کو میں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میں میرے عزیزو یہ برکت کی علامت کی۔ پیدائش 27واں باب اس کی 28ویں آیت تلاوت کیجئے گا۔ خدا آسمان کی اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، آسمان کی اوس تجھے بخشے۔ ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا اوس، بارش، می، یہ بھی روح القدس کی علامت ہے، برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان کی اوس، زمین کی فربہی، ہر ایک فربا چیز تیرے لیے ہو، اور کیا ہو جی؟ اناج بھی تیرے لیے ہو اور میں بھی تیرے لیے ہو۔ یہ برکت کی بات ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کے اندر جب اناج اور فزیکل چیزوں کے اندر کثرت، برکت سمجھی جاتی تھی، ان چیزوں میں بھی شامل ہے، موجود ہے۔ ایک اور حوالہ اس کی برکت کا اوور فلو ہونے کا دیکھیے، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت۔ امثال 3 باب اس کی 9 اور 10 آیت، یہاں پر دیکھیے برکت کس طرح اوور فلو ہوتی ہے۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے جی خداوند کی تعظیم کر، خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، یعنی اناج بھرا رہے گا، تیرا سٹوریج بہت زیادہ ہوگا، بابرکت ہوگا، تو تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، یعنی ان سے میں بہے گی، صرف سٹور نہیں ہوگی، اور جہاں پر حوض لتاڑے جاتے تھے وہاں سے میں بہتی رہتی تھی، یعنی کہ تجھ سے مسا، برکت، خوشحالی دوسروں کے لیے بھی تو باعث برکت ہوگا، تیرے حوض نئی مے سے لبریز رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ برکت کی علامت ہے، یہ اوور فلو ہونے کی علامت ہے، یعنی خداوند کا روح جب ہم پر آتا ہے، ہم میں سرایت کرتا ہے، ہم روح سے معمور کہلاتے ہیں، ہوتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر سے برکت اور پھل اور اوور فلو ہوتا ہوا مسا میرے عزیزوں وہ نظر آنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں سے دوسروں کی زندگیوں کے اندر برکت نظر آنی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی ایسے ہی روح سے معمور ہو، ایسے ہی روح کی ندیاں ہماری زندگیوں سے جاری و ساری ہوں، اور ہم ایسے ہی نئی مے والے حوض بن جائیں جو ہمیشہ لبریز رہیں اور دوسروں کی خوشی کا اور برکت کا اور نجات کا باعث بنے رہیں۔ اب اس کا الٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے، میں کی قلت، میں کا ختم ہو جانا، میں کا نہ ملنا، یہ خدا کی ناراضگی، یہ لعنت اور یہ بے برکتی کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ میں کا نہ ملنا، کم ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بے برکتی، لعنت اور پریشانی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 24واں باب اس کی 5ویں آیت، تھوڑا سا پیسج لمبا ہے لیکن میں ختم ہونے کی جو تصویر یہاں پر پیش کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ 24ویں باب کی 5ویں سے 11ویں آیت تک ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک حالت بیان کی گئی ہے۔ زمین اپنے باشندوں سے ناچے ہوئی،
नजिस हुई, जमीन अपने बाशिंदों से नापाक ठहरी है, नजिस ठहरी है। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने शरीयत को अधूल किया, शरीयत को अधूल किया है, आइन से मुनहरिफ हुए, आइन से मुनहरिफ हो गए हैं, अहद को तोड़ा, अहद को तोड़ा है, अहद शिकनी की है। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया। इस सबब से 3 असबाब बयान किए गए हैं आयत में। और उसके बशिंदे मुजरिम ठहर गए। बशिंदे क्या हो गए जी? ठहरिएगा हारिस भाई। 3 बातें बयान की गई हैं, कानून शिकनी की है, अहद को तोड़ा है और आइन से मुनहरफ हो गए हैं। रिजल्ट क्या निकला है कि जमीन उनके सबब से नजिस हो गई है, नापाक ठहरी है, लानत के जेरे असर आ गई है और अब ये सारे के सारे खुदा की सजा के हकदार ठहरे हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, सजा के लायक हैं। सब ने गुनाह किया। यहां पर किसी मखसूस खित्ते की बात नहीं हो रही, तमाम नस्ल इंसानी, नस्ल आदम गुनहगार है। आगे बढ़िए। और इसीलिए जमीन के लोग बदम हुए और थोड़े से आदमी बच गए। थोड़े से बच गए। नहीं मैं गमजदा और पाक बस मुर्दा है। हाँ जी, नई मैं गमजदा, जब नई मैं होती थी तो खुशी का सामान होता था। जब हौज के अंदर नई मैं लताड़ी जाती थी, अंगूर रोंदे जाते थे तो बड़ी खुशी के साथ और गीत गाए जाते थे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि नई मैं गमजदा है, खुशी का बायस नहीं है। गुनाह के साथ कभी भी खुशी नहीं आ सकती। और क्या बात हुई है जी? तो सब जो दिलकश से आप भरते हैं जी, और ताक पशमुर्दा है। ताक कहते हैं वाइन। वाइन के भी 2 अंग्रेजी में इसका भी जरा समझ लें, सैमसन भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। इसमें 2 वाइन इस्तेमाल हुए हैं लफ्ज जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं। एक वी से वाइन है, VINE, एक WINE है। वाइन का मतलब है ताक, अंगूर की ताक, अंगूर की शाख। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। ये वाइन वी वाला वाइन है, विक्ट्री वाला वाइन। हालेलुया। तो हम जो वाइन जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसके अंदर विक्ट्री है, क्योंकि यीशु मसीह फाते अजल है। हालेलुया। विक्ट्री है, वी वाला वाइन ये यीशु मसीह है। आई एम द वाइन। यीशु ने कहा मैं हूं अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम डालियां हो। अब जब इसको निचोड़ लिया जाता था, रस निकाल लिया जाता था और जब इसको इसमें खमीर उठाकर शराब बनाई जाती थी, फिर W वाला वाइन बन जाता था। तो यहां पर वाइन पाकिस्तान ताक, ये वी वाला वाइन है। तो हम वी वाले वाइन के अंदर पैवस्त की गई डाली है। हालेलुया। हम वो जिंदा शाख हैं जो मसीह के अंदर हैं। और यहां पर लिखा है कि नहीं मैं गमजदा और ताक पसमुर्दा है। जब गुनाह आता है तो मुर्दगी आ जाती है, मौत आ जाती है, ताक में जिंदगी नहीं रहती और ताक बेसमर हो गई है, शाख फलदार नहीं रही। जिंदगी अब वैसी फलदार, वैसी आबाद नहीं रही। गुनाह आइन की पासदारी ना करने का हुक्म, ना मानने का नतीजा इस सूरत में निकलता है। मेरे अजीजों, हम अदालत के नीचे और सजा के नीचे आ जाते हैं। हमारी खुशी मातम में बदल जाती है। आगे पढ़िए। ढोलकों की खुशी बंद हो गई, यानी साज आवाज जो गाना और साजिंदा था वो भी मौकूफ हो गया है। खुशी मनाने वालों का गुलो शोर तमाम हुआ। बरबत की शादमानी जाती, ओ बरबत की शादमानी जाती रही है। वो फिर गीत के साथ मैं नहीं पीती, गीत के साथ मैं नहीं पीते। पीने वालों को शराब तक मालूम होगी, पीने वालों को शराब तल्ख मालूम होगी। सुनसान शहर वीरान हो गया, वीरानी आ गई है।
हर एक घर बंद हो गया जी, कि कोई अंदर ना जा सके। ना जा सके। मैं के लिए बाजारों में वावेला हो रहा, सारी खुशी पर तारीखी छाप, मुल्क की इज्जत जाती रही, मुल्क की इज्जत जाती रही। शहर में वीरानी ही वीरानी है। बस, थैंक यू जी। मैं के लिए बाजारों में वावेला हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं भाई मैं पिलाओ, तलखी बढ़ गई है, खुशी नहीं रही। कोई कहीं से कुछ जाम, कोई सागर का इंतजाम किया जाए, कोई पार्टी अरेंज की जाए, कोई खुशी की जियाफत का कोई एहतमाम किया जाए, लेकिन घरों के अंदर ताले पड़ चुके हैं, वीरानी और सुनसानियां लिखा, घर के अंदर कोई अंदर ना जा सके। और बाजारों के अंदर वावेला है, उदासी है, मैं की किल्लत हो गई है, ताक पसमुर्दा हो गई है। हौज जो लबरेज कभी होते थे, आज वो खाली हो चुके हैं। ये बेबरकती की, ये लानत होने की और ये खुदा की नाराजगी का इजहार है। यसु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है वो फल लाती है। हालेलुया। जो डाली यसु में लगी रहेगी, उसके साथ पैबस्त रहेगी, उसके अंदर रहेगी, मसीह में होगी, वो डाली फलदार होगी। और यसु मसीह ने वहीं पर आगे चलकर कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम उस डाली में, उस ताक में लगे रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, तुम मुझसे अलग हो जाओगे, तुम मेरे फरमाबरदारी में नहीं रहोगे, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। काश कि आज हम अपने इस मकाम को दोबारा से पहचानें, हम यीशु मसीह के आईन को दोबारा से समझें कि हमें सब बरकतें, सब मामूरी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मसीह में होने की वजह से मिलता है। अगर हम मसीह में हैं तो ये सारी बरकतें, सारी मामूरी हमारे लिए हैं, खुदावंद के कलाम के सारे वादे हमारे लिए हैं। लेकिन अगर हम मसीह से जुदा हो गए हैं, और ये जुदाई गुनाह के वसीला से आती है, खुदावंद के हुक्म ना मानने की वसीला से आती है, कलाम की नाफरमानी, आइन से मुनहरफ होने की वजह से आती है, और फिर हमारी खुशी जो है वो इस तरह मातम में और शोर-गुल में और लोहों के अंदर बदल जाती है। पौलुस रसूल इस अहद को समझ गया था, वो इस भेद को पा गया था, और वो कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मसीहत में नहीं, उसमें, मसीह में। बाज लोग मसीहत में होकर समझते हैं कि हमारे लिए सब कुछ होगा, नहीं, मसीह में होना जरूरी है, मसीह में आना जरूरी है, मसीह में शामिल होना जरूरी है। जब तक हम मसीह में नहीं होंगे, हमारी ताकत जाती रहेगी, हम खुशी गम में तब्दील रहेगी, और हम खुदावंद के भेद को कभी भी नहीं जान सकते। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें होने की वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आने के वसीला से मेरे अजीजों, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसके बगैर नहीं, उसके बाहर नहीं, उससे जुदा होकर नहीं, उसमें आने के वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यीशु मसीह में आने के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर नए इम्कानात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, नए रुझानात आना शुरू हो जाते हैं, हमारी जिंदगी की तरजीहात, हमें नई तरजीहात मिलना शुरू हो जाती हैं, हमारी जिंदगी के अंदर नए मौजूआत पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये तमाम तर, ये नौयतें, ये इम्कानात, ये रुझानात, ये तरजीहात सिर्फ और सिर्फ मसीह में होने की वजह से। अगर ये डाली मसीह में कायम रहेगी, मसीह में लगी रहेगी, तो ये ताक फलदार रहेगी। और रूल कुद्स है, रूल कुद्स है वो जो हमारा इलाही मददगार है। अंगूर की डाली बड़ी नाजुक होती है, बड़ी नरम होती है,
لیکن روح القدس ہے جب یہ انگور کی ڈالی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ انگور کی نرم ڈالی بڑے بڑے دیوداروں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ ہے جو ہمیں مسیح میں قائم رکھتا ہے۔ روح القدس ہے جو ہمیں مسیح کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ یہ ہے جو ہماری کمزوری میں بھی ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمیں گرنے نہیں دیتا، اور مسیح کی محبت کی میں ہمارے دلوں کو مسلسل جوش دیتی رہتی ہے، اور ہم آندھیوں کے اندر، طوفانوں کے اندر، اظہار ثانیوں کے اندر، موسم کی سختیوں کے اندر، گرمی اور حبس کے اندر بھی مسیح میں ہونے کی وجہ سے تازہ دم رہتے ہیں، پھلدار رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور ہمیشہ مسیح کے لیے پھل لاتے رہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ روح القدس کی خدمت ہے، یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہر موسم میں، ہر حالات میں ہمیں مسیح پر قائم رکھتا ہے، بلکہ ہر اذیت، ہر اظہار ثانی ہمیں مسیح میں ایمان میں ایک قدم اور مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ نرم ڈالیوں کو بھی دیودار کی مانند مضبوط اور سخت جان بنا دیتا ہے۔ وہ طاقت عنایت کرتا ہے، وہ قوت عنایت کرتا ہے، اور اسی قوت کے لیے، اسی طاقت کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک کہ قوت کا لباس تم پر نازل نہ ہو۔ اب قائم رہنے کے لیے مسلسل روح القدس کی معموری کا ہونا میرے عزیزوں بے حد لازم ہے۔ قائم رہنے کے لیے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ انگور کی بنیادی ڈالی ہے، اور ہم نے اس کے اندر پیوست رہنا، اس کے اندر قائم رہنا ہے۔ اگر ہم مسیح میں قائم نہیں رہیں گے تو پھل نہیں لائیں گے۔ دو تین سوالات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بڑے خاص ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اب جو سٹڈی یہاں سے آنورڈ میں تھوڑی سی دوں گا، اس کو آپ ضرور سمجھیے، یہ آپ کی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو ایک نیا روحانی موڑ بھی دے سکتی ہے۔ تو قائم رہنے کے لیے روح القدس کی معموری کا ہونا ضروری ہے۔ روح کے بغیر ہم مسیح میں قائم نہیں رہ سکتے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں نیا بناتا ہے، اور نیا مخلوق ہونے کے لیے بھی ہمیں روح القدس کی ہی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم نئے نہیں بن سکتے۔ ہم نے جو ابتدائی حوالہ تلاوت کیا، اس میں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ نئی میں کو کہاں پر بھرتے ہیں جی؟ نئی مشکوں میں بھرا جاتا ہے۔ پرانی مشکوں کے اندر نئی میں کو داخل نہیں کیا جاتا، یہ حماقت ہے۔ مشک کیا ہوتی ہے؟ ہم سب تھوڑے سے کچھ پیچھے گاؤں کے حالات سے واقف ہیں۔ ایک چمڑے کی ایک بوتل ہے جس کے اندر پانی سٹور کیا جاتا ہے۔ انگلش بائبل میں بوٹل لفظ آتا ہے، بوٹل سے وہ تصور نہیں ابھرتا۔ تو مشک جو ہے یہ چمڑے کی ایک بڑی ساری ایک بیگ ہے، ایک کنٹینر ہے، جس کے اندر پانی جو ہے وہ بھرا جاتا تھا، اور فلسطین کے اندر میں کو سٹور کرنے کے لیے بھی یہی جو چمڑے کی مشک ہے یہ استعمال کی جاتی تھی۔ اور جب اس کے اندر میں کو بھرتے تھے اور اس کو جب خمیر دیا جاتا تھا تو مختلف قسم کی گیسز ریلیز ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر دباؤ پڑتا تھا، اور لچکدار ہونے کی وجہ سے، سکن لیدر ہونے کی وجہ سے یہ مخصوص ہو کر ایک اپنے حجم سے بڑھ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی ایک لمٹ تک۔ اور جیسے ہی اس کے اندر اگر آپ دوبارہ نئی میں ڈالیں گے، نئی گیسز بنیں گی، نیو پروسیس ہوگا، تو یہ اس پروسیس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور یہ پھٹ جاتی تھی۔ وہ مشک بھی بیکار ہو جاتی تھی اور میں بھی رہ جاتی تھی۔ یہ تمثیل ہے جو یسوع المسیح نے متی کی انجیل 9 باب کی 16-17 آیت کے اندر بیان کی ہے۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان ہو کر اپنی اعلیٰ عقل لگا کر یہ بات جانتے ہو کہ نئی میں کو پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، تو اس بات کو بھی سمجھ لو کہ میں جو بادشاہی لے کر آیا ہوں، میں جو تعلیم لے کر آیا ہوں،
میں جو नया निज़ाम लेकर आया हूं, ये पुरानी शरीयत के फरसुदा स्ट्रक्चर के अंदर, निज़ाम के अंदर, कालिब के अंदर ठहर नहीं सकता, ये बर्बाद हो जाएगा, ये सिस्टम को भी तोड़ देगा और खुद भी ये फजल जो है ये बेसूद हो जाएगा। जैसे पुरानी मैं पुरानी मश्क के अंदर नहीं ठहर सकती, वैसे ही यीशु मसीह का फजल रूह कुद्स की मामूरी नई मश्क के अंदर भरना जरूरी है। ये नई जिंदगी के अंदर आना जरूरी है, इसके लिए नया होना जरूरी है। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, हम नए मखलूक नहीं बनेंगे, हम नया नहीं दिल, हमारा दिल नया नहीं होगा, उस वक्त तक रूह कुद्स की मामूरी हमारे अंदर सरायत नहीं कर सकते। तो नया होना बड़ा जरूरी है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि हम तो पुराने हैं, जैसे निकोदेमुस ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अब किस तरह से नए सिरे से पैदा हो सकता हूं, मैं किस तरह से नया मखलूक बन सकता हूं। तो मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब की 5वीं आयत के अंदर गुड न्यूज ये है, अंजील ये है, खुशखबरी ये है कि यीशु अल मसीह पुकारता है। मुकाशफा 21वें बाब की 5वीं आयत के अंदर के देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। जो चीज तू समझता है कि ये नई नहीं बन सकती, यीशु का ऐलान सुन। यीशु कहता है, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। वो इस स्किन को भी, इस चमड़े को भी, इस पुरानी इंसानियत को भी सलीब पर खींचकर नया मखलूक बना देता है। हालेलुया। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। यीशु मसीह हमें अपने खून से धोता है, हमें पाक ठहराता है, वो हमारे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह को डाल देता है, फिर हमें नए सिरे से पैदा करता, नया मखलूक बनाता, नया दिल बना देता, नई फितरत अनायत करता और रास्तबाजी कुव्वत का नया लिबास पहनाता है। वो हमें नया नाम देता है और नया गीत सिखाकर हमें नए आसमानी शहरी बनने का हक अनायत कर देता है। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह है जो सब चीजों को नया बना देता है। मेरे अजीजों, रूह की मामूरी ये यीशु मसीह के अंदर एक मुनफरिद, एक यूनिक और नया तजर्बा है और ये बार बार होते रहने की जरूरत है। तालीम ये दी जाती है कि सिर्फ ईमान कर लो, इकरार कर लो और फिर तुम रास्तबाज ठहर जाओगे, निजात पा जाओगे और यहीं पर हमारी रूहानियत फुल स्टॉप हो जाती है। लेकिन रूह से मामूरी का तजर्बा हमें मसीह में हर रोज नया बनाता है। हालेलुया। ये एक दफा का तजर्बा नहीं है कि आपने आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले बपतिस्मा लिया, निजात पाई और उसके बाद आप मसीह में हो गए। नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप है। हमें हर रोज मसीह के साथ रफाकत रखनी है, हर रोज उसकी मामूरी में बढ़ना है और कलाम हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से रूह की मामूरी में रहना लाजम है, वरना हम कायम नहीं रह सकते। ये याद रखिए, अगर हम इस तौर से नहीं चलेंगे तो अगर हम रूह से मामूर नहीं होंगे तो फिर हम मसीह में कायम नहीं रह सकते। हम शुक्रगुजार हैं उस तमाम खिदमत के जो मसीही मिशनरियों के वसीला से यहाँ पर की गई, जो किसी भी जराए से यहाँ पर की गई, जिन्होंने ईमान का बीज यहाँ पर बोया। वो हस्पताल हो, वो स्कूल हो, वो कोई भी फलाही इदारे हों, जैसे भी उन्होंने खुदावंद के होली स्पिरिट के, मैं समझता हूँ कि मातहत रहते हुए जो खिदमत उनके स्पुर्द हुई उन्होंने वो की, जिसकी वजह से आज यहाँ पर एक अजीम शान कलीसिया कायम है। लेकिन क्या निजात पा लेना और बपतिस्मा ले लेना और मसीही कहलाना
यही सिर्फ मसीहत की और यही सिर्फ मसीही जिंदगी की अलामत है या रूहानियत का सफर है? नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हम रूह कुद्स की मामूरी को सीखने लगे हैं, और बड़ी खास बात है, रूह से मामूर होते जाओ, इफ्सियों के खत में लिखा है। रूह से मामूर जिंदगी कैसी होती है ये मैं दूसरे हिस्से में बताऊंगा, जब खुदावंद ने किसी दूसरे इतवार मौका दिया। आज हम रूह से मामूर होने का तजुर्बा सीख रहे हैं कि ये फर्क चीज है, ये निजात से फर्क है। ये सिर्फ बपतिस्मा पाकर ईमान लाकर निजात हासिल करना सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आगे का नेक्स्ट लेवल की रूहानियत है। और इसके लिए कई एक मिसालें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर मरकूम हैं। मेरे साथ मिसाल अब आपने देखनी है और इस बात को समझना है कि रूह से मामूली क्या चीज होती है। अमाल की किताब देखिए, उसका 8वां बाब। जो लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेकर सिर्फ निजात हासिल हो गई और काम मुकम्मल हो गया है, नहीं। बड़े खास हवाला जात और बड़ी खास बात हम सीखने लगे हैं। अमाल की किताब उसका 8वां बाब, यहां पे सामरिया के अंदर इंजील की मुनादी की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है कि एक डीकन है, उसका नाम है फिलिपस। यरूशलेम के अंदर कलीसिया को सताया जा रहा है, इज़ारसानी शुरू हो गई है। नतीजा क्या निकला कि हिजरत करनी पड़ी है और लोग यरूशलेम को छोड़कर कलीसिया के लोग दूसरे शहरों के अंदर जा रहे हैं, और जहां पर भी वो जा रहे हैं वो खुदा के कलाम की खुशखबरी कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। इरशाद आजम की तकमील हो रही है, जाओ सारी खल के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उसे बाप बेटे रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। तो क्या यहीं तक हमारी ड्यूटी है? नहीं, रूह कुद्स की मामूरी इससे कहीं आगे है। आइए गौर कीजिए, 8वें बाब की 4थी आयत लिखा है, बस जो परागंदा हुए थे, यानी यरूशलेम में इत्तेहाद था, कलीसिया इकट्ठ थी, लेकिन इज़ारसानी के बाद परागंदगी आ गई है, बिखर गए हैं। जो लोग परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिपस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। फिलिपस के ऊपर फोकस आ गया, और जो मौजज़े फिलिपस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। अब 2 मिनिस्ट्रीज यहां पर हम देख रहे हैं। पहली मिनिस्ट्री ये प्रीचिंग का मसा उसके पास है, मुनादी करता है और अच्छी मुनादी करता है, मौसम मुनादी करता है, जैसे पतरस रसूल किया करता था। ये रसूल नहीं है लेकिन मसा रूह कुद्स देता है, वो किसी को भी दे सकता है। उसने फिलिपस को ऐसा ही मसा प्रीचिंग अनॉइंटिंग से नवाज दिया है, प्रीचिंग की बरकत दी है, और फिर मौजज़ात की भी, मिरेकल अनॉइंटिंग भी उसके पास है। और जो मौजज़े फिलिपस दिखाता है, सारे का सारा सामरिया शहर उससे हैरान है, मुतासिर है। यार ए भाई कोल बड़ी कोई ताकत है। फिर 7वीं आयत में लिखा है, बथेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं, बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। मौजज़ात के वसीला से, रूह कुद्स के मसा के वसीला से, जब एक अनॉइंटेड खादम किसी जगह पर जाता है तो उस इलाके के अंदर खुशी और शादमानी की लहर दौड़ जाती है। और मुनादी का मसा, डिलीवरेंस का मसा, शिफा और मौजज़ात की नेमत और बरकत फिलिपस के साथ साथ काम करती हुई नजर आ रही है। फिर यहां पर हम ये देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ 12वीं आयत के अंदर। लेकिन जब उन्होंने फिलिपस का यकीन किया, ये उसकी मुनादी का फल आने लगा है, ईमान ले आए हैं लोग,
जो खुदा की बादशाही और यीशु नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। एक बड़ी भीड़ ने वहां पे यीशु को कबूल किया है और वो बपतिस्मा लेने लगे हैं। ठीक होगी जी, बात समझ आ गई। फिलिप्पस गया है, मुआवजे हुए हैं, मुनादी हुई है, जिसके वसीला से एक बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को कबूल किया है और पानी का बपतिस्मा ले लिया है। उसमें एक बड़ा शमौन जादूगर भी शामिल है। अब ये रिपोर्ट पीछे यरूशलेम चर्च को गई है, जो मदर चर्च है, जो पहले ही रूह के ताजा मसा को बार बार महसूस कर चुका है, जो बार बार रूह की मैं को पी चुका है, जो उस आसमानी बख्शिश का मजा चख चुका है। जब उन तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि सामरिया के अंदर बेदारी है, सामरिया के अंदर लोग नए मखलूक बन गए हैं, सामरिया के अंदर नया काम शुरू हो चुका है, तो उन्होंने क्या फैसला किया? 14वीं आयत के अंदर लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में था सुना कि सामरियों ने खुदावंद का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, उनके पास भेजा। इन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाए। बपतिस्मा हो चुका है, इरशाद आज़म की तकमील हो चुकी है। अब पतरस और यूहन्ना यहां पर क्या करने आए हैं? ये जोड़ी यहां पे रूहुल कुद्स के लिए स्पेशल भेजी गई है हेडक्वार्टर से। तुसी लोग भाई स्पेशल जाओ। इसका मतलब ये है, आगे चलकर हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स की मामूरी बपतिस्मा, ईमान लाना और ऐसी इब्तिदाई बातों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये खुदा का फजल है, खुदा का इनाम है। और ये बाज़ औक़ात खास माहौल में आने से, और बाज़ औक़ात हम यहाँ पर देखेंगे किसी खास शख्स के हाथ रखने से ये बरकत, ये मामूरी हासिल होती है। और ये स्पेशल रूहुल कुद्स के लिए, ये बदरुएं निकालने के लिए नहीं आए, ये बपतिस्मे देने के लिए नहीं आए, ये शिफाइया जो कोई बेदारी काम शिफाइया मीटिंग के लिए भी नहीं आए। इनके आने का पर्पस लिखा है कि वो रूहुल कुद्स पाने के लिए, उनको देने के लिए वहां पर आए हैं। 18वीं आयत देखिए, जब शमौन ने देखा, अब ये देते कैसे थे? ये हाथ रखते थे, हाथ रखने से लोग रूहुल कुद्स से मामूर होते थे। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, जब शमौन ने, ये जादूगर था, देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। रूहुल कुद्स किसी इंसान की जागीर नहीं है, याद रखिए, किसी जमात की जागीर नहीं है। ये हवा है, जिधर चाहती है चलती है। हमने इसके बारे में सीख रखा। अब जादूगर ने देखा कि भाई ये कोई अजीब ताकत है, ये कोई अजीब काम है, ये भाई जिधर ते हाथ रख देने वही बंदा रूह से मामूर हो जाता है। और वो रुपए लाकर इस नेमत को खरीदना चाहता था, लेकिन दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत, रूहुल कुद्स की कोई खिदमत, कोई नेमत नहीं खरीद सकती। उसने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, तू इसको किसके साथ तोल रहा है? दुनियावी दौलत के साथ इस इख्तियार को तोड़ रहा है। तुझ में पित्त किसी करवाहट और नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है। ये पित्त है, ये एक घटिया किस्म की शराब होती थी जो आम लोग, मजदूर लोग पिया करते थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना रूहुल कुद्स की ताजा नई मैं के नशे में लबरेज होकर सामरिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं। और ये वो हौज हैं जिनसे नई मैं छलक रही है, लबरेज हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है, और सारे का सारा सामरिया शहर इस नई मैं से लुत्फ अंदोज हो रहा है। रूह से मामूर करने के लिए इनको भेजा गया है, और इनके हाथ रखने से लोग रूह से मामूर
हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले फिलिप्पस ने जो किया है वो क्या किया है? फिलिप्पस ने उन्हें यीशु के लिए नया बनाया है, वो नई मश्क बन गए हैं। और फिर रूह कुछ पतरस और यूहन्ना के वसीला से उनमें नई मैं को उंडेल रहा है। अब वो उसे सस्टेन कर सकते हैं, अब वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, अब वो उसे बियर कर सकते हैं। तस्वीर समझ आई है आप सारी कि निजात पाना, नया मखलूक होना, वो नया बनना है सिर्फ। लेकिन हम रहते खाली हैं जब तक हम रूह से मामूर ना किए जाए। और रूह की मामूरी के लिए खास माहौल में आना, खास रफाकत में आना बेहद जरूरी है, वरना हम रूह से मामूर नहीं होंगे। एक और मिसाल इसी किताब में अमाल 8वें बाब की 12वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल की मिसाल भी हमारे सामने है। यह शख्स भी पुरानी कड़वाहट तल्ख मै से भरा हुआ था। यीशु मसीह ने इसे दमिश्क की राह पर पहले नया बनाया। इसको 12वीं आयत पढ़िएगा, अमाल 8वें बाब की 12वीं आयत। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम से खुशखबरी देता था, तो सब लोग मर्द औरत बपतिस्मा लेने लगे। नहीं, थैंक यू, सॉरी। अमाल की किताब उसका 9वां बाब 5वीं आयत, बल्कि 4थी और 5वीं। ये पुरानी नया से भरा हुआ है। मजहबी फरीसियत, यहूदियत, इस नया से भरा हुआ दमिश्क को जा रहा है। अमाल 9वें बाब की 3री आयत से देखिएगा। जब वो सफर करते करते नजदीक पहुंचे तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका है पौलुस रसूल के, और वो जमीन पर गिर पड़ा है। और ये आवाज सुनी, क्यों मुझे क्यों सताता है? मैं कहता हूं ये वो मश्क थी जो गिरी और इसके अंदर से सारी पुरानी मैं वहीं पर दमिश्क की राह में बह गई। सारी फरीसियत की मैं इसके अंदर से निकल गई। सारी कड़वाहट और तलखी जो यीशु और कलीसिया के खिलाफ थी, सारी पुरानी इंसानियत इस मश्क में से बह गई और यीशु मसीह ने इसको अपने कलाम से नया बना दिया। हालेलुया। यीशु का कलाम इसने सुना, यीशु की आवाज इसने सुनी, और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम जब इसने सुन लिया, ये बेचैन हो गया और फिर इसके अंदर से वो पुरानी जो मैं थी वो भी बह गई। और फिर ये जाकर दुआ करने लगा। यहां पर मैं मुख्तसर ये बता दूं कि 3 काम इसकी जिंदगी में हमें नजर आते हैं। जा रहा था लड़ाई करने, मारने, कत्ल करने, कलीसिया को धमकाने, इज़हार रसानी के लिए, लेकिन अंधा हो गया और एक कोठड़ी में बंद हो गया। 3 दिन तक कुछ खाया ना पिया और मुसलसल दुआ करता जा रहा है। यीशु मसीह से मिलने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और दुआ और रोजा और रोया देख रहा है। दुआ और रोजे का नतीजा ये होता है कि हमें विजन मिलता है, हमें रास्ता मिलता है कि हमने क्या करना है। खुदावंद रोया हमें देता है और रोया में देख रहा है कि एक शख्स है जिसका नाम हननिया है, और वो आएगा और वो सर पर हाथ रखेगा और तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू बीना हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर रोया नजर आ रही है और वहां पर हननिया नामी शागिर्द जो दमिश्क में ही है उसे भी ये रोया जो है वो नजर आ रही है। और फिर हननिया जब इसके घर में दाखिल हुआ, अमाल 9वें बाब की 17वीं आयत के अंदर ये बयान पढ़िए। अब ये नया बन चुका है, खाली हो चुका है, मश्क नई बन चुकी है। वक्त आ गया है कि इसके अंदर रूह कुछ की नई मैं को उंडेला जाए। अब नई मैं से ये भरने लगा है। 9वें बाब की 17वीं आयत। तो जहाँ दाखिल हुए और अपने हाथ उस पर रख कर कहा,
खुदावंद खुदा ने यीशु जो तुझको उस राह में जिससे तुम आप आया आधारित हुआ जी, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने मुझे भेजा है, यीशु ने मुझे भेजा। भाई साउल जो यीशु तुझे रास्ते में मिला था, उसी यीशु ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और हालेलुया। दो काम करने के लिए आया हूं, भेजा हुआ हूं, रसूल हूं, शागिर्द हूं यीशु का, और यीशु ने भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए, मामूल हो जाए। नहीं, मैं यीशु तेरे अंदर उंडेलने लगा है। फिर क्या हुआ जी? तो रूह तुझसे भर जाए और वो फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। ये नई मैं से लबरेज हो गया और इसने रोया के अंदर देखा। 12वें आयत में लिखा है, और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर बीना हो। ये जो हाथ रखना है ये स्पेशल अनॉइंटिंग है, इस लेवल की। ये आप वो हौज बन जाते हैं जिससे नई मैं लबरेज होती है, बहना शुरू होती है, ओवरफ्लो होना शुरू होती है। पतरस, यूहन्ना और फिर ये हननिया शागिर्द, और फिर आगे पौलुस रसूल की खिदमत के अंदर भी हम देखते हैं कि वो जिस पर भी हाथ रखते थे वो रूह कुछ से मामूर हो जाते थे। हालेलुया। तो हमें मेरे अजीजों ना सिर्फ नया बनना है, ना सिर्फ खुद अपने अंदर इस नए को लेना है, बल्कि खुदावंद से दुआ ये करनी है, लेवल अपने लिए ये मांगना है, रूहानी नेमतों की आरजू ये रखनी है कि खुदावंद हमारे हाथों के अंदर भी ये तासीर दे दे। हमें भी ये नेमत अनायत कर कि जब हम भी कलाम करें, हम भी काम करें, हम भी जब किसी को छुएं तो वो जिंदगी भी रूह से मामूल हो जाए, उसकी जिंदगी के अंदर नई मैं आ जाए, वो शख्स भी रूह कुछ के नए मैं से भर जाए। यरूशलेम की कलीसिया नई मैं से बार बार लबरेज होती थी। यीशु मसीह ने उन पर रूह फूंका। ईद पेंतिकोस पर उनको नई मैं से एक बार नवाज दिया गया। अमाल की किताब 4 बाब के अंदर एक बार फिर वो रूह कुछ से भर गए, वो मकान गूंज उठा और उनकी जिंदगियों से रूह कुछ की खिदमत जारी और सारी होना शुरू हो गई। मेरे अजीजों, यह रूह की मामूरी है जो हमें मसीह में कायम रखती है, जो मसीह में जोड़े रखती है, और हमारी जिंदगी फलदार, खुशगवार, लबरेज हो जाती है, और हमारी जिंदगियों से रूह का मसा दूसरों में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।